लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े समाचार तो आप तक लाएंगे ही, साथ ही साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ इन खबरों पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से भी करेंगे बात और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का चल रहा है प्रचार और क्या है चुनावी माहौल उन राज्यों में। और आज कार्यक्रम में स्टूडियो में आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। The headlines. Enforcement agencies make record seizure of over 4,650 crore rupees before Lok Sabha polls. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi addresses public meetings at Tirunelveli in Tamil Nadu and Cheruvathani in Kerala. Congress leader Rahul Gandhi participates in a roadshow at Batheri in Wayanad Lok Sabha constituency. प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा चुनाव से पहले रिकॉर्ड 4,650 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में तिरुनेलवेली और केरल में चेरुवत्तनी में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र के बथेरी में किया रोड शो। आज की बड़ी खबर, प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले जब्त की गई कुल राशि का 45% मादक पदार्थों के रूप में जब्त किया गया है। आयोग ने कहा है कि ये राशि विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, व्यापक योजना और लोगों की सक्रिय भागीदारी के कारण जब्त की जा सकी है। इस वर्ष 1 मार्च से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi has said that the NDA government is always keen in developing the country in all spheres. Electioneering at Tirunelveli in Tamil Nadu today, he enlisted the various assurances given by the BJP government. He accused the DMK Congress combine of indulging in drugs and corruption. Mr. Modi told that people should take a decisive action to keep them away from power. Earlier, while addressing a public meeting at Cheruvathani in Alathur reserved constituency, he accused the left government of hindering centre's development programs in the southern state. He said that BJP's priority is to ensure welfare of the common people, especially that of the poor. Mr. Modi said the forthcoming general elections will pave way for the bright future of the country. Meanwhile, in Wayanad Lok Sabha constituency, Congress leader Rahul Gandhi participated in a roadshow at Batheri. LDF leaders including Sitaram Yechuri and Prakash Karat were also scheduled to hit the campaign trail this week. भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दार्जिलिंग लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में कालिम्पोंग में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने आश्वासन दिया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो दार्जिलिंग में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार ध्यान देगी। इससे पहले उन्होंने पार्टी नेता राजू बिस्ता की उपस्थिति में सिलीगुड़ी में व्यापारी समुदाय से बातचीत की। श्री ठाकुर ने भ्रष्टाचार को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को मिलने वाली सहायता राशि पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। Senior BJP leader and Union Minister Amit Shah today said that the Narendra Modi-led NDA government is committed to make Tripura a developed state.
Addressing an election rally at Kumarghat in Unakoti district of Tripura, Mr. Shah said that for the honour, safety and all-inclusive development of the tribals, Mr. Modi has implemented various developmental projects. He said that after 75 years of independence, a tribal lady was made the president of the country. The senior BJP leader said earlier budgetary provision of 24,000 crore rupees was earmarked for Tribal Welfare Department, but now it has been hiked to 1,25,000 crore rupees. Meanwhile, the Congress CPIM leaders also campaigned for their party candidates in various parts of the state. कांग्रेस ने आज दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी की लहर है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में विविधता की रक्षा करना वहां सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में धर्म, जाति, भाषा और प्रांत के आधार पर विविधता आज खतरे में है। और आज की बड़ी खबर अवस्थी जी यही है कि प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जब्त की है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को जो 75 साल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताई जा रही है और 1 मार्च से 13 अप्रैल तक इसमें नकदी भी जब्त की गई है, नशीले पदार्थ भी बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। इस बार बहुत सख्ती दिखा रहा है निर्वाचन आयोग। दरअसल सख्ती इस बात की नहीं है। मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से ये जिस माहौल में, जिस वातावरण में ये चुनाव हो रहे हैं, उसमें शुरुआत में ही अभी चुनाव का पहला चरण भी अभी वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन 4,650 करोड़ रुपए की नकदी और ड्रग्स पकड़े जाना अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा नकदी तो आप कह सकते हैं, लेकिन ड्रग्स का तो विदेशों से संबंध है ही। तो मुझे लगता है जिस तरीके से विदेशी शक्तियां इस चुनाव में अपना जो रुचि दिखा रही हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक बात संतोष की यह है कि निर्वाचन आयोग और तमाम एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैदी से, अभी ये मानना चाहिए कि मुस्तैदी से काम कर रही हैं। पता नहीं कितना नहीं पकड़ा गया उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितना पकड़ा गया उसके बारे में हम ही कह सकते हैं कि एजेंसियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। मान लीजिए कि अगर ये ना पकड़ा जाता तो ये सारा सब कुछ इन्हीं चुनावों में भ्रष्ट तरीकों के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग होता है इस पैसे का। तो निर्णय तो हमारा यही, निष्कर्ष तो यही निकालना चाहिए कि ये 4,650 करोड़ रुपए से जो भ्रष्ट आचरण हो सकता था इस चुनाव में, वो बचाया गया है। जी, राइट। Avnijesh Awasthi, the Prime Minister and senior BJP leader, Mr. Narendra Modi, in today's rallies at both Tamil Nadu and Kerala, focused on two aspects: one, development, and second, the fight against corruption. As an analyst, do you think these twin planks are going to be the key factors in the 18th Lok Sabha elections? Of course. आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लगातार, जब 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने भ्रष्टाचार पर बहुत प्रहार किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आह्वान किया भारत की जनता का। और 2014 के पश्चात आप देखिए कि अब तक एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार का कोई दूर तक कोई आरोप लगा सके केंद्र सरकार की किसी भी योजना में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जबकि अगर 2014 से पहले देखेंगे तो रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार के घोटाले के, जिसमें स्वयं उस समय की केंद्र सरकार मानती थी कि हाँ ये घोटाला हुआ है। मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े थे उस समय। लगभग 8 से 10 12 मिनिस्टर ऐसे थे उस समय की सरकार में जिनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो सामने घोटाले आए थे। तो एक बात तो बड़ी साफ सी है कि प्रधानमंत्री लगातार जिस बात पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, बहुत नीचे के स्तर पे अभी वो शायद उतना नहीं सफल हो पाए होंगे, जो बिल्कुल एमसीडी या मतलब जो स्थानीय निकाय होती हैं वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाए। लेकिन जो बड़े बड़े हज़ारों लाखों करोड़ के जो घोटाले होते थे उसमें निश्चित रूप से कहीं कोई एक जरा सा भी काला बिंदु नहीं निकाल सकता, पहली बात। दूसरी बात ये भी बड़ी साफ सी बात है कि जब वो आए थे तो 2014 में उन्होंने कहा था कि गुजरात मॉडल वो मॉडल था जिसमें भ्रष्टाचार जीरो, गुड गवर्नेंस और विकास पूरी तरीके से जनता को समर्पित। मुझे लगता है कि उस समय लोगों ने उसको नहीं समझा, लेकिन समझना चाहिए था। 2002 से लेकर के 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे तो, और आज तक
अगर गुजरात में उनकी पार्टी इस तरीके से सफलता हासिल करती तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पूरे देश में जो विकास का वो और हम देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका कहना है। अभी जो उन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया उसमें सारा उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि हमने ये किया ये किया ये किया। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे सर कि द कांग्रेस आल्सो is talking about, its leadership is talking about, you know, many new development plans and how the party is going to make a comeback post June 4. What is your reaction to that? I think the credibility is very low in eyes of people actually. क्योंकि आप ये देखें ना कि कर्नाटक हो या हिमाचल हो, जहाँ पर उनकी अभी सरकार अभी जीत के आए थे, जो उन्होंने कहा वो कितना हद तक पूरा हुआ ये देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं पूरा हुआ, वहाँ की अगर कर्नाटक और हिमाचल में अगर वो कांग्रेस वापस नहीं आ पाती है तो आप ये देख लीजिए पूरे देश में कैसे आएगी। जो सर्वे कह रहे हैं और जो वहाँ की हालत है, ग्राउंड रिपोर्ट है, तो वो एक बड़ी साफ सी बात है। कांग्रेस के पास इस देश में शासन करने के लिए 50 से अधिक वर्ष तक थे। वो चाहती तो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर सकती थी जिसमें कोई दूसरा उसकी बराबरी भी करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन 50 सालों में हम सब जानते हैं कि मेडिकल सुविधाओं के नाम पे सिर्फ एक एम्स था, सिर्फ 4 या 5 शहरों में IIT थे, कुछ IIM थे, एयरपोर्ट सिर्फ बड़े शहरों में थे और सब जगह से वो भी शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं जाती थी। नाउ एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, IITs हो, IIMs हो, ये सारी चीज़ें बुनियादी मतलब लोगों के सामने एक वो खोल के रख दिया है सरकार ने कि ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं। G20 में जिस तरीके से छोटे छोटे शहरों में जाकर के G20 की बैठक करने का मतलब ये है कि इस देश का कोई भी शहर राजधानी से कम नहीं है, नई दिल्ली से कम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश दिया है सरकार ने, वो सबसे महत्वपूर्ण। राइट। Well, listeners, in a democracy, elections are very important and there's a whole system to get as many people to vote as possible. However, citizens sometimes go the extra mile to encourage each other to vote. Our correspondent, Durgesh Bhadodia from Delhi, brings you some inspiring stories. In the 2019 parliamentary election, Mary from Kerala came up with a unique idea. Instead of just talking about voting, she distributed saplings. She asked people to plant trees after voting. People liked the idea and planted trees enthusiastically. Thanks to Mary's idea that not only made the area greener but also increased voter turnout. Niaz Ali, a 102-year-old resident of Bishnupur, Manipur, is another example. He believes in encouraging young voters to think about the future of the nation and to strengthen democracy. There are many other centenarians like Niaz Ali who lead by example and encourage young voters to cast their votes for the country. In the 2020 Delhi Assembly elections, 96 centenarians voted, including 111-year-old Bachan Singh, who set a record. His love for the country motivated many others to come out and vote. Stories like these inspire others to come out and vote, showing the power of citizens, encouraging each other in the democratic process. ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही चर्चित सीट है लोकसभा की, रामपुर। और रामपुर सीट का लेखा-जोखा हमारे संवाददाता दे रहे हैं। रामपुर जिले की जनसंख्या 29,03,172 है। इसमें 75% ग्रामीण और 25% आबादी शहरी लोगों की है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 17,29,280 कुल मतदाता हैं। इनमें 9,14,743 पुरुष और 8,14,379 महिला व अन्य 158 मतदाता हैं। रामपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक शामिल हैं। इस सीट की सीमाएं बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मेरठ लोकसभा सीटों से मिली हुई हैं। जिले में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना की जाएगी। चुनाव के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद घनश्याम सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा है, जो नई दिल्ली जामा मस्जिद के पेश इमाम हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जीशान खान को टिकट दिया है। इसके अलावा माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से अरशद वारसी चुनाव मैदान में हैं। वहीं निर्दलीय रूप से शिव प्रसाद और महमूद प्राचा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोई भी महिला प्रत्याशी मैदान में नहीं है।
जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के लिए जिले में 1071 मतदान केंद्र और 1789 मतदेय स्थल बनाए हैं। जिले को 25 जोन में बांटा गया है। साथ ही इसमें इतने ही जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 152 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाकर इनमें मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 5 फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगाई गई हैं जो भ्रमणशील रहकर निगरानी करेंगी। जी, रामपुर सीट के बारे में आपने ये रिपोर्ट सुनी और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ओम अवस्थी, हमारे लखनऊ संवाददाता। ओम, पहले चरण का मतदान अब नज़दीक है और प्रचार में भी बहुत कम समय बचा है। प्रचार अब किस चरण में पहुंच चुका है? प्रचार में तेजी आ गई है? कैसा चल रहा है प्रचार और राजनीतिक दलों के कौन कौन से नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर? विशाल जी, उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। बसपा प्रमुख की 23 अप्रैल तक 13 रैलियां होनी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली भी आने वाले दिनों में प्रस्तावित है। पश्चिमी यूपी की सीट पर जीत पक्की करने के लिए तीनों दलों के बड़े नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात पहले फेज की प्रमुख सीटों की है तो इस फेज की प्रमुख सीटों में पीलीभीत की सीट पर खास चर्चा हो रही है। इस सीट से मेनका गांधी सर्वाधिक 6 बार और उनके बेटे वरुण गांधी 2 बार सांसद रहे हैं। गांधी परिवार के प्रभुत्व वाली इस सीट पर भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने पड़ोसी जनपद बरेली की नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मंत्री रहे भगवत सरन गंगवार को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने बीसलपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान और फूल बाबू को फिर से प्रत्याशी बनाया है। इनके अलावा 7 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की हाई प्रोफाइल सीट पर भी पहले चरण में ही मतदान होना है। यहाँ से भाजपा ने लगातार 2 बार से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और बहुजन समाज पार्टी से दारा सिंह प्रजापति मैदान में हैं। इनके अलावा 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सहारनपुर की महत्वपूर्ण सीट पर भी पहले फेज में चुनाव होना है। इस सीट पर भाजपा ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने यहां से इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। 2019 में इस सीट पे हुए चुनाव की अगर बात करें तो उस चुनाव में बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने भाजपा के राघव लखनपाल को करीब 20,000 वोटों से हराया था, लेकिन बसपा ने इस बार फजलुर रहमान के बजाय माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा 7 अन्य प्रत्याशी भी इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा अन्य सीटों पर भी तीनों प्रमुख दल अपने प्रत्याशियों को जीताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अविनाश अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य, 80 सीटें आती हैं यहाँ से और पहले और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 16 सीटें दांव पर हैं और 2019 में जो पहले चरण की जो 8 सीटें हैं वहाँ पर भाजपा को 5 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था। और ये जो आप देख रहे हैं अब तस्वीर इस समय क्या आपके सामने उभर कर आ रही है? 10 सीटों पर हम देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की 16 में से जो 2 चरणों में चुनाव होना है, पहले और दूसरे चरण में 10 सीटों पर जाट समुदाय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पिछली बार आरएलडी भाजपा के साथ नहीं था और हमें ये इस यथार्थ को, इस तथ्य को स्वीकार लेना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन कि इस पूरी बेल्ट में आरएलडी का चौधरी चरण सिंह का एक बहुत अधिक प्रभाव है। और चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कभी किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, एक बात, और दूसरे ही बहुत ही सख्त प्रशासक माने जाते थे। वो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके बारे में तरह तरीके की कहानियाँ होती थी कि रात को वो देखते हैं कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, वो इस तरीके से अपने गवर्नेंस को चलाते हैं। तो उसके कारण पूरे न सिर्फ जाटों में बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के प्रति एक विशिष्ट सम्मान है। और उनकी विरासत में आज अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं, और न सिर्फ जयंत चौधरी होना बल्कि चौधरी चरण सिंह को इतने लंबे समय के पश्चात भारत रत्न देना, ये एक ऐसा इशू है जिससे समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहा है कि अब हमें कुछ नहीं सोचना। जो काम इस सरकार ने किया है, चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान किया है, जिस सम्मान को हम बरसों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और सही बात है कि चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान मिलना चाहिए था। उस
चौधरी चरण सिंह कभी भाजपा या जनसंघ के साथ उस तरीके से संवित सरकार के समय में जरूर रहे थे, लेकिन ऐसे साथ नहीं थे। लेकिन दूसरी पार्टियों के लोगों को भी ये सम्मान देना, इस सरकार ने एक ऐसी शुरुआत की है जिसकी वजह से समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जो हवा है पूरी तरह से बदली हुई है। और मुझे लगता है कि शायद इस बार तो जो वहाँ से सूत्र बता रहे हैं वो आ रहा है कि पूरी की पूरी तरह से स्वीप कर जाएगा आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन है। राइट। और अब हम चलते हैं फ्रॉम रामपुर टू तूतुकुड़ी इन तमिलनाडु। 6 assembly segments, Vilatikulam, Thuthukudi, Tiruchendur, Vasrivaigundam, Ottapidaram and Kovilpatti. The constituency was established on 2009. Kanimuri Karunanidhi was elected from this constituency in 2019 with more than 56% votes against Tamilisai Soundararajan of the BJP, who secured more than 21% votes. Kanimuri is seeking re-election for the second time here. The total electorate is 14,48,159 voters. Sivasamy Velumani from AIADMK and Vijay Seelan from Tamil Maanila Congress, an ally of the BJP, is contesting for the first time here. In the 6 assembly segments, 5 went to DMK Congress combined and 1 went to AIADMK in 2021 assembly election. Right, sir. That was the input from Thoothukudi. Yeah. Tamil Nadu is a very important state in the 18th Lok Sabha elections, and today also we have seen the rally there by the senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi. And the India Alliance seems to have a foothold in Tamil Nadu. Your brief comments on this. Listen, this is one thing. After Jayalalitha demise, वहां पर एक वैक्यूम आ गया है विपक्ष का। डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, बट लेकिन उस वैक्यूम को, उस जगह को भरने वाला जो है कोई दल वहां पर दिखाई नहीं देता। एआईएडीएमके में आपसी खींचातानी भी हुई, डिवाइड हुआ, लोग वहां के नेताओं के बीच में जिस तरीके के झगड़े फसाद सामने आए वो सबके सामने है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और भारतीय राजनीति में इस समय को ध्यान रखा जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति पूरे चुनाव की फिजा को बदल सकता है। ये अगर इसका जीता जागता उदाहरण है तो तमिलनाडु है जी। तमिलनाडु में जिस तरीके से एक आईपीएस अफसर जो थे वहां से रिजाइन करके राजनीति में आकर के तमिलनाडु की जनता के मन में जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी को एक ऐसी आवाज देना जो अब तक उनके पास नहीं थी। जो डीएमके के खिलाफ लोग थे उनको मालूम नहीं चलता था कि हम किसके पास जाएं। आज अन्नामलाई नाम के व्यक्ति ने उस आवाज को इतनी प्रखरता से बुलंद किया है कि न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व भर के चुनावी पंडित इसको बहुत ही अचरज भरी निगाहों से देख रहे हैं। एंड इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी बिग सरप्राइज इन तमिलनाडु दिस टाइम। राइट। और अब बात बिहार की किशनगंज सीट की, और इस सीट के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। सीमांचल बिहार के किशनगंज क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कड़ा चुनावी मुकाबला होने के आसार हैं। 16 लाख से अधिक मतदाता इस बार 12 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। कांग्रेस के मौजूदा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जदयू के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान मुख्य प्रत्याशी हैं। अमौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मतों के करीब करीब बराबर बढ़ जाने से काफी कम अंतर से जीत और हार का फैसला हुआ था और कांग्रेस अपनी सीट बचाने में सफल रही थी। 2009 से ही कांग्रेस लगातार किशनगंज का प्रतिनिधित्व कर रही है। किशनगंज का संसदीय इतिहास देखें तो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने इस लोकसभा सीट का 3 बार, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1999 में 1 बार प्रतिनिधित्व किया है। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमौर और बायसी विकास के पायदान पर अत्यंत पिछड़े और गरीबी वाले क्षेत्र हैं। विकास का अभाव, बुनियादी ढांचा की कमी और हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही इस संसदीय क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। जी, और अब किशनगंज की अगर बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे अवस्थी जी कि एआईएमआईएम, क्या आपको लग रहा है कि इस बार बिगाड़ सकती कांग्रेस का खेल वहां पर? मैं एआईएमआईएम का मतलब इस तरीके से नहीं देखता हूँ किसी भी पार्टी को, अगर वो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, कि खेल बिगाड़ना उनका हक है, लड़ना, चुनाव लड़ना उनका हक है।
और किसी पार्टी को ये कहना कि वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती, मुझे तो लगता है अभी खुद ओवैसी साहब को समर्थन दिया कांग्रेस ने हैदराबाद में उनकी सीट पर, तो इसलिए कांग्रेस और AIMIM एकमात्र एक साथ ही हैं एक तरीके से, तो वो उनका खेल क्यों बिगाड़ेंगे। लेकिन किशनगंज में तो उम्मीदवार खड़ा करा है कांग्रेस के खिलाफ यही तो इस पूरे विपक्षी इस इंडिया अलायंस का यही तो समझ में नहीं आता। दिल्ली में किसी और के साथ हैं, केरल में किसी और के साथ हैं, पश्चिम बंगाल में किसी और के साथ हैं, पंजाब में आमने सामने तू मैं हो रही, तो इस अलायंस का क्या सोच है यही समझ में नहीं आता, कैसे ये एक हो गए हैं। एकमात्र सीट थी शायद मुझे लगता है किशनगंज की, जो कांग्रेस के पास एक ही सीट थी वहां से, जो बाकी सब JDU और बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार देखते हैं कि जो और अख्तरुल इमान जो हैं वो ओवैसी साहब के खास व्यक्ति हैं, वो जाएंगे भी वहां पर चुनाव प्रचार करने, तो इस बार तो वाकई चुनाव बहुत ही रोचक होगा इस बार। राइट, एंड फ्रॉम किशनगंज वी गो टू द पिक्चरस्क state on the coastline of Arabian Sea, Goa, and we are joined by our correspondent Nagesh. Please can you inform our listeners about the filing of nominations, the campaigning and the preparedness of the Election Commission for the Lok Sabha elections in Goa? Good evening from Penjin, sir. At the outset, the nominations for the 2 Lok Sabha constituencies from Goa have begun on the 12th of April and will continue up to the 19th, following which there will be scrutiny and withdrawal. But an interesting picture has come in the North Goa parliamentary constituency, with Bharatiya Janata Party giving ticket to the 5-time winning candidate and Union Minister Sripad Naik, and he is pitted against the ex-Union Law Minister in the Devegowda government of 1996, Advocate Ramakant Khalab, fighting on the Indian National Congress ticket, and the local Revolutionary Goans Party candidate Mr. Parab. And incidentally, the Revolutionary Goans Party has gained 10% seats in the last Vidhan Sabha elections of 2022. So this triangular fight appears to be very interesting in the North Goa parliamentary constituency. So far as the filing of nominations goes, not a single nomination has been filed till today, but on 16th, the candidates of the BJP in both North and South Goa will file their nominations, and nominations will be filed by the Revolutionary Goan Party on the 18th. Now, so far as the South Goa parliamentary constituency is concerned, it appears to be an interesting fight even more, because the BJP has fielded in women candidate of a business family, Mrs. Dempo, and she is pitted against Kargil war veteran Captain Viriato, who contesting on the Indian National Congress ticket, and also there is the Revolutionary Goan Party candidate, an ST person, Mr. Rupert. And in the South Goa constituency also, there appears to be a very interesting triangular fight. So both the constituencies in Goa are headed for a triangular fight. So far as the campaigning goes, it is on a low pitch. Thank you, Nageshji. Thank you very much for that output. And sir, very briefly, Goa seems to be an interesting battle where is on the cards, because it seems to be, as per our correspondent, triangular fights in both North Goa and South Goa. But I think कि गोवा का चुनाव अभी भी मनोहर पारिकर की छवि पर भाजपा है, और प्रमोद सावंत के खिलाफ अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है कि जिससे लगे कि गोवा की जनता बीजेपी या प्रमोद सावंत की सरकार से कोई नाराजगी, कोई एंटी इनकम्बेंसी वहाँ नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा उस क्षेत्र में थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है। Thank you, Avnijesh Avasthi, for discussing various aspects and enlightening our listeners with your valuable inputs. Thank you so much indeed.